A very good o'clock, dear students, and I am Nikita ma'am, your geography teacher. Students, today we are going to discuss about the currents of Atlantic Ocean and Indian Ocean. We had till now studied the currents of the Pacific Ocean, North Pacific and South Pacific both, and today we'll study about the Atlantic and Indian Ocean. Let me discuss each of them in brief. So, first of all, the currents of North Atlantic Ocean. That is North Equatorial Current. It flows from coast of Africa in the east to West Indies in the west. Okay, so the direction of flow is east to west and it flows parallel to the equator under the influence of trade winds, as trade winds are easterlies, right? So they flow from east to west. So under the influence of trade winds, these current also flow from east to west. Here you can see this is the current originating from the eastern side, okay, and flowing towards the western side. Okay, now let us see next. Next is Antilles Current. The South Equatorial Current bifurcates into two branches. Okay, this was North Equatorial, next is South Equatorial. It bifurcates into two branches, means it divides into two branches near Cape de Sao Roque in Brazil. Okay, it divides into two branches. Then northern branch reinforces the North Equatorial Current and part of combined current enters the Caribbean Sea. It means the northern branch of the South Equatorial Current joins the North Equatorial Current and then they both enter the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico, and while the remainder passes along the eastern side of West Indies as the Antilles Current. Whatever the remaining part of the current is there, it passes along the eastern side of West Indies, okay, and it's known as Antilles Current. Let us see where is this current in the picture. So the Antilles Current, if you can see here, the branch of South Equatorial Current joins the North Equatorial Current, some branch, and another branch forms the Antilles Current. Okay, another branch is forming the Antilles Current. Let us see the next. The next one is the Florida Current. Okay, the branch entering the Gulf of Mexico is reinforced by a great bulk of warm ocean water. So as we studied कि जो South Equatorial Current है उसकी दो branches होती हैं. One branch goes towards the North Equatorial Current and both of them enter to Gulf of Mexico. और ये जो branch Gulf of Mexico की तरफ enter होती है इसको एक बड़ी सी branch join करती है जो कि warm ocean water की branch है, driven by the trade winds and by water brought by the Mississippi River. और ये पानी trade winds की वजह से और Mississippi River से इन्हें supply होता है. As a result, the water level in the Gulf rises as compared to that of the Atlantic Ocean. Okay, now what will happen कि जो water level है Gulf of Mexico में वो increase हो जाएगा, ठीक है, as compared to Atlantic Ocean. और हमें पता है कि difference in water level causes the current, ठीक है, तो क्या होगा कि is this compensated by the current flowing out through the Strait of Florida and this branch is joined by the Antilles Current. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पानी स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको में भर गया है, नाउ इट विल मूव आउटवर्ड, ये बाहर निकलेगा कहाँ से, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से. ओके, फ्रॉम द केप ऑफ फ्लोरिडा द कंबाइंड करंट मूव अलॉन्ग द, और इसको ज्वाइन करता है एंटिलीज करंट, फिर यहाँ से ये दोनों मूव करते हैं कंबाइंडली साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ एंड इट्स नोन एज फ्लोरिडा करंट अप टू द केप हैटरास. ओके, यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ये मूव करते हैं, इट इज़ नोन एज फ्लोरिडा करंट. यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्ट की तरफ ये मूव करते हैं एंड दिस इज़ नोन एज फ्लोरिडा करंट. ओके, हियर यू कैन सी द फ्लोरिडा करंट. This is the Florida current. Okay, let us see the next. So the next one is the Gulf Stream beyond the Cape Hatteras up to the Grand Banks of Newfoundland. It is known as the Gulf Stream. The Gulf Stream receives plenty of water. Okay, so it's a continuation of the Florida current. Okay, when Florida current after the Cape Hatteras तक इसको बोलते हैं फ्लोरिडा करंट, और उसके बाद से लेकर न्यू फाउंडलैंड के कोस्ट तक जो वार्म वाटर की ब्रांच जाती है इसे हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम. इट रिसीव्स प्लेंटी ऑफ वाटर, वार्म वाटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इसे पानी कहाँ से मिलता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, वार्म वाटर, एंड इट कैरीज इट टू द कोल्ड एरियाज. न्यू फाउंडलैंड इज़ अ कोल्ड एरिया, राइट, लेकिन गल्फ स्ट्रीम के इफेक्ट की वजह से वहाँ पर विंटर में भी आइस नहीं जमती है. ओके, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द वार्म करंट. ठीक है,
So this is carried to the cold areas. In the beginning it flow along the east coast of America from a southwest to northeast direction, and then it near Halifax comes under the influence of westerlies and reaches the Gulf of St. Lawrence. The Gulf Stream is well defined in the deep waters. Okay, इट मीन्स पहले जो उसकी डायरेक्शन थी वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, लेकिन फिर हैलिफैक्स के पास ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है टेम्परेट रीजन में, जहाँ फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, देन इट मूव टुवर्ड्स द ईस्ट और फिर ये कहाँ पहुँचता है, वेस्ट की तरफ मूव करता है और पहुँचता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में. ओके, हियर यू कैन सी द गल्फ स्ट्रीम. इसका फ्लो हम यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, दिस इज द गल्फ स्ट्रीम. हियर इट इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. ओके, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये फ्लो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट so the next current is North Atlantic drift from the Grand Banks. The Gulf Stream flows eastward across the Atlantic under the influence of prevailing westerly winds. Here it is known as North Atlantic drift, and its speed is quite large in the open ocean. Okay, so this current is known as North Atlantic drift. ये जो Gulf Stream जहाँ से आ रहा है, जब ये यहाँ से मूव करता है कहाँ की तरफ, ईस्टवर्ड. ठीक है, ईस्ट की तरफ मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स. जो वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, तो इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. ड्रिफ्ट यानी खिसकना, तो ये खिसक जाता है. ठीक है, इट मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट साइड. ओके, इसीलिए इसे ड्रिफ्ट कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज नॉर्वेजियन करंट. नॉर्वेजियन करंट का क्या है, इट द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस व्हेन इट रीचेस द यूरोपियन कोस्ट. अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगी 2 में जब ये नॉर्वेजियन कोस्ट पे पहुंचेगी. ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, यूरोपियन कोस्ट पे जब ये पहुंचेगी तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. और जो नॉर्दर्न ब्रांच है वो ब्रिटिश आइसल्स पहुंचती है, जहाँ से ये नॉर्वे के कोस्ट की तरफ बहती है एज द नॉर्वेजियन करेंट्स, और फिर आर्कटिक ओशन में एंटर कर जाती है. ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज अ नॉर्वेजियन करंट जो कि नॉर्वे के कोस्ट के लॉन्ग फ्लो करता है. ओके, ब्रिटिश आइसल्स में, एंड दिस इज नोन एज नॉर्वेजियन करंट. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव the Canaries current. So the second branch of North Atlantic drift takes a southerly turn and flows between Spain and Azores, and the cold Canaries current as the cold Canaries current. This current finally joined the North Equatorial current, completing the circuit in the North Atlantic. Here you can see कि कैसे जो इसकी सेकेंड ब्रांच है वो नीचे की तरफ आ गई है कैनरीज करंट की तरह. दिस इज़ अ कोल्ड करंट. ओके, और फिर ये कहाँ मिल जाएगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में, एंड इस तरीके से ये पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नॉर्थ इक्वेटोरियल से चला फ्लोरिडा, देन गल्फ स्ट्रीम, देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद नॉर्वेजियन करंट, और नीचे की ब्रांच इसकी आ गई कैनरीज करंट के फॉर्म में, एंड दिस विल कंप्लीट द सर्कल ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन. नॉर्थ अटलांटिक ओशन का सर्कल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव द ईस्ट ग्रीनलैंड करंट. ईस्ट ग्रीनलैंड करंट का क्या है कि दिस करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड. सिंपल. ठीक है, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड ये वाला करंट हमारा फ्लो करता है. ठीक है, हियर यू कैन सी द ईस्ट ग्रीनलैंड करंट. ये रहा आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है ग्रीनलैंड के, सिंपली. ओके, नेक्स्ट वी हैव द लेब्राडोर करंट. इट्स अ कोल्ड करंट. दिस स्टार्ट्स from the Baffin Bay and Davis Strait and flow along the coast of Labrador. ठीक है, लेब्राडोर के कोस्ट के along ये फ्लो करता है. इट ब्रिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ आइसबर्ग्स, क्योंकि ये कोल्ड करंट है, लार्ज नंबर ऑफ आइसबर्ग्स ये लेकर आता है फ्रॉम द Baffin Bay, एंड द ईस्ट ग्रीनलैंड करेंट्स जॉइन इट एट द सदर्न टिप ऑफ ग्रीनलैंड. और जो ईस्ट ग्रीनलैंड करेंट है वो इसको ज्वाइन करता है ग्रीनलैंड के सदर्न टिप पर, यानी बिल्कुल लास्ट पर. द जॉइंट करेंट मूव फर्दर साउथवर्ड एंड जॉइन विद द गल्फ स्ट्रीम. और ये जो करेंट्स हैं ये नीचे की तरफ मूव करके गल्फ स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं नियर न्यू फाउंडलैंड. अगर आपको याद हो, नियर न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर दैट इज़ अ कोल्ड करंट एंड गल्फ स्ट्रीम इट इज़ अ वार्म करंट. जब दोनों मिलते हैं तो डेंस फॉग इज़ प्रोड्यूस. ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉग प्रोड्यूस होता है. देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट के मिलने से फॉग प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जो कि हिंड्रेंस करता है नेविगेशन को. ठीक है, देन देयर इज सरगासो सी. इट इज़ द काम सी लाइन विद इन द सर्किट ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल. ये एक सी है जो कि नॉर्थ इक्वेटोरियल सर्किट में ही लाई करता है. गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरीज करेंट. इट इज़ फुल ऑफ सी वीड्स नोन एज सरगासम.
हमने पढ़ा भी हुआ है इनका टाइप्स मरीन लाइफ में। सरगासम इसको बोलते हैं, जो सीवीड्स इससे प्रोड्यूस होते हैं इन द पोर्टुगीज़ लैंग्वेज, और इसीलिए इसको सरगासो सी बोला जाता है। ओके, इट स्प्रेड्स ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेडेड है। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज़ द लेब्राडोर करंट। देन ईस्ट ग्रीनलैंड भी इसको ज्वाइन करता है और दोनों करंट जाकर गल्फ स्ट्रीम में मिल जाते हैं नियर न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, और सरगासो सी कैन ऑल्सो बी सीन हियर। ये सरगासो सी है। कौन कौन से करंट हैं इसके आसपास? गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, कैनरीज करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, सारे से ये बना हुआ है। ओके, नाउ द करेंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। सो साउथ इक्वेटोरियल करंट पहला है। इसमें क्या है? इट लाइज इन द साउथ ऑफ इक्वेटर एंड फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये एक साउथ में है इक्वेटर के, यानी नीचे की तरफ, और पैरेलली फ्लो करता है ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज़ फ्लोइंग लाइक दैट। ओके, next up we have Brazil current. So the South Atlantic current split into two branches near the Cape de Sao Roque, ब्राज़ील में ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहली जो ब्रांच है, जो नॉर्दर्न ब्रांच है, वो ज्वाइन करती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को, एंड वेयर एज जो सदर्न ब्रांच है वो टर्न हो जाती है साउथवर्ड, साउथ की तरफ, और ब्राज़ीलियन कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करती है। ठीक है, हियर यू कैन सी जो इसकी नॉर्थ ब्रांच है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और नीचे वाली जो साउथ इक्वेटोरियल करंट की दूसरी ब्रांच है वो साउथ की तरफ फ्लो करती है ब्राज़ील के अलॉन्ग। ठीक है, अफ्रीका, और इसीलिए ये बनती है क्या? आपका ब्राज़ीलियन करंट। ओके, इसको कहते हैं हम ब्राज़ीलियन करंट। नेक्स्ट इज साउथ अटलांटिक करंट। साउथ अटलांटिक करंट में क्या है? द ब्राज़ील करंट स्विंग्स ईस्टवर्ड एट अबाउट लैटिट्यूड 35 डिग्री साउथ टू जॉइन द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ब्राज़ील करंट क्या है? स्विंग कर जाता है ईस्ट की तरफ 35 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुंचकर, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को ज्वाइन कर लेता है फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट की तरफ मूव होके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को ज्वाइन कर लेता है। यार यू कैन सी ब्राज़ील करंट नीचे आया, ईस्ट की तरफ मूव किया, ठीक है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को ज्वाइन कर लिया। दिस इज़ अ कोल्ड करंट। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव वेनेजुएला करंट। ठीक है, वेनेजुएला करंट क्या है? नियर द केप ऑफ गुड होप अ ब्रांच ऑफ साउथ अटलांटिक करंट फ्लोज नॉर्थवर्ड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप के पास एक साउथ अटलांटिक करंट की जो ब्रांच है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, फ्लो करती है, जो कि साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की साइड है, एंड इट्स अ कोल्ड करंट नोन एज वेनेजुएला करंट। इट फाइनली जॉइंस द साउथ इक्वेटोरियल करंट एज कंप्लीटिंग द सर्किट। अब यहाँ से आप देख रहे हैं एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर गई है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसीलिए इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? वेनेजुएला करंट। ठीक है, और ये मूव फिर से मिल जाती है साउथ इक्वेटोरियल करंट में, और इस तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके, दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। और फाकलैंड करंट क्या है? अनदर कोल्ड करंट नोन एज फाकलैंड करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये वाला करंट जो है वो कहाँ से कहाँ बहता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, फाकलैंड। ठीक है, देख लिया आपने ये भी। एंड दिस ब्रिंग्स ह्यूज आइसबर्ग्स फ्रॉम द अंटार्कटिक रीजन, क्रिएट्स थिक फॉग व्हेन इट जॉइंट्स विद द वार्म वाटर। ये आपका अंटार्कटिक रीजन से लेकर आता है बहुत सारे आइसबर्ग्स को, और जब ये कोल्ड वार्म करंट से मिलता है, जो कि ब्राज़ील करंट है आपका, तो उससे मिलने पर बहुत ज़्यादा फॉग क्रिएट होता है। ओके, so that's all about the currents of South Atlantic Ocean. I'll discuss the currents of Indian Ocean in another video. Okay, thank you.